السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو اردو بیسٹ ناولس۔ ناول بے درد پیا کی ایپیسوڈ نمبر 1 سٹارٹ کرتے ہیں۔ بے درد پیا از ام ہانیہ، قسط نمبر 1۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ تیز سرد ہوائیں درختوں کے پتوں سے سرسرا کر ٹکراتی ہر ذی روح کو انسان کو کپ کپانے پر مجبور کر رہی تھی۔ تبھی ایک بلیک کرولا قبرستان کے ہاتھے میں آ کر رکی۔ دروازہ کھول کر ایک باروب شخصیت ہاتھ میں ایک مضبوط بیگ لیے باہر نکلی اور قبرستان کے اندر جانے لگی۔ اس کے قدموں میں واضح شکستگی اور آنکھوں میں ندامت تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک مخصوص قبر کے قریب پہنچا اور معمول کے مطابق بیگ سے تازہ پھولوں کا شاپر نکال کر قبر پر ڈالنے لگا۔ اس کے بعد اس شخص نے وہاں کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھی اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگا۔ دعا مانگ کر وہیں قبر کے پاس زمین پر بیٹھ کر سسکنے لگا۔ مجھے معاف کر دو پرنسس، خدا کے لیے معاف کر دو۔ حالانکہ میرا گناہ معافی کے قابل نہیں۔ بہت برا کیا میں نے تمہارے ساتھ، بہت برا۔ اب سوچتا ہوں تو میری اپنی روح کانپ اٹھتی ہے۔ تمہارے رونے تڑپنے اور گر گرانے کے باوجود میں نے تمہارے لیے ایک پراذیت موت کا انتظام کیا۔ یہ دکھ مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتا، اور تم نے بھی مجھے چھوڑنے کی اتنی جلدی کی کہ مجھے معافی کا ایک موقع تک نہ دیا۔ اب کہاں سے ڈھونڈوں میں دل کا سکون کہ میرا سکون تو تم اپنے ساتھ لے گئے۔ تم مجھے معافی کا پسمردہ سنا دو تو شاید میری بے قرور روح کو کچھ سکون مل جائے۔ وہ اونچا لمبا مضبوط بیل ڈول کا حامل شخص اس وقت وہاں قبر پر ہاتھ پھیرتا بچوں کی طرح سسک رہا تھا۔ دور کھڑے گورکھر نے تعصب سے یہ منظر دیکھا۔ اس کے لیے یہ منظر نیا نہیں تھا۔ یہ شخص پچھلے 21 سالوں سے یوں ہی روز بلا ناغہ موسم کی پرواہ کیے بغیر وہاں آتا تھا۔ کوئی طوفان، کوئی بارش، کسی بھی قسم کا موسم اس کی روٹین پر اثر انداز نہیں ہو پایا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس قبر پر آنے والا وہ واحد شخص تھا۔ اس کے سوا وہاں اس قبر پچھلے 21 سالوں میں کوئی نہیں آیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ایسے ہی وہاں دنیا مافیا سے بے خبر راز و نیاز میں لگا رہا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ جس طرح آیا تھا اسی شکستگی سے واپس کے لیے مڑ گیا۔ اسے اپنے ملائم گداز بازو پر اس جلاد صفت عورت کے ہاتھ کی سخت گرفت کراہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کی سخت انگلیوں کی گرفت اسے اپنے بازو کی جلد کے اندر تک دھنستی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ عورت اسے اس کی بازو سے سختی سے دبوچے تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ نیدا کو اس عورت کی رفتار سے ملنے کے لیے باقاعدہ بھاگنا پڑ رہا تھا۔ کمرے کے دروازے کے پاس رک کر اس عورت نے دروازہ دھکیلا اور نیدا کے بازو کو ایک جھٹکے سے کھینچ کر یوں اندر دھکیلا جیسے دفعہ 302 کے تحت مجرم کو سزا سنانے کے بعد قید خانے میں دھکیلا جاتا ہے۔ اس عورت کے کمرہ بند کر کے جانے کے بعد نیدا نے اپنا کب کا رکا ہوا سانس بحال کیا۔ اس نے آہستہ سے اپنا گھونگھٹ ہٹایا اور کپڑائی نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ کمرہ صفائی اور نفاست کا منہ بولتا ثبوت تھا، لیکن وہ کہیں سے بھی شادی کی پہلی رات کا کمرہ نہیں لگتا تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں ایسی شادی اور دلہن کا ایسا استقبال نہیں دیکھا تھا۔ کتنی امنگیں اور نئی زندگی کی خوش نما لمحات کے جگنو آنکھوں میں سجائے ہوئے اسنیپ بندھن میں بندھی تھی، لیکن یہاں پر سب کے اتنے سرد رویے اور پتھریلے تاثرات دیکھ کر اس کی روح فنا ہونے لگی تھی، جیسے کوئی پہلے دن کی دلہن نہیں بلکہ کوئی مقتول ہو۔ نہ ہی اسے اس گھر میں کوئی شادی والے گھر کی طرح چہل پہل دکھی اور نہ ہی کوئی مہمان یا رشتہ دار وغیرہ۔ یہ کیسی شادی تھی؟ نہ دلہن کی کوئی ناز برداری اور نہ ہی کوئی خاطرداری، بس سرد مہری ہی سرد مہری تھی۔ اب تو بس اس سے توقع تھی جس سے یہ بندھن بندھا تھا۔ نہ جانے اس کا رویہ کیسا ہوتا، وہ یہی سب سوچتی اپنا لہنگا سنبھالتی بیڈ کی طرف بڑھی۔ دن بھر کی تھکاوٹ، اتنا لمبا سفر اور گھر والوں کا عجیب اور سرد رویہ، اس کی طبیعت پر ایک بوجھل پن سوار ہونے لگا۔ وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے دونوں گھٹنے پیٹ سے لگائے ان کے گرد ہاتھ باندھ کر گھٹنوں پر سر رکھ گئی۔ اس کا جسم کپ کپا رہا تھا، اسے آنے والے لمحات سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ارے بلبل، اتنا ڈر کیوں رہی ہو یار؟ اتنا بھی کوئی مشکل کام نہیں کہا میں نے، چلو جلدی سے کس کرو یہاں۔ پھر کلاس لینے بھی جانا ہے تم نے؟ یونیورسٹی کے پچھلے گراؤنڈ میں، جہاں اس وقت اکا دکا اسٹوڈنٹس کے سوا کوئی موجود نہ تھا۔ وہ لڑکا اپنے شانوں تک آتے لمبے بالوں کو بینڈز میں جکڑے، گھٹنوں سے پٹی جینس پر سلیو لیس شرٹ پہنے، ہاتھوں میں مختلف رنگوں کے بینڈز پہنے، گلے میں موٹی سونے کی زنجیر پہنے، شوق سی نظروں سے اپنے سامنے کھڑی شلوار قمیض اور دوپٹے میں ملبوس اس معصوم سی ڈری سہمی بلبل کو دیکھ کر کہہ رہا تھا، جو کہ فریشر تھی، یونیورسٹی میں ریگنگ کے لیے سختی سے منع کیا گیا تھا، لیکن پھر بھی سینئرز کے کچھ اسٹوڈنٹس کی خیر میں پیش تھے، جن میں شاہان کا گروپ سب سے آگے تھا۔ وہ لڑکی اب خود کو کوس رہی تھی، جو کہ بدقسمتی سے یونیورسٹی کے پہلے ہی دن اپنی کلاس ڈھونڈنے کے لیے شاہان کے گروپ میں سے ہی ایک طرح
लड़की से हेल्प मांग बैठी थी। अपनी दानत में तो इसने किसी लड़के से मदद लेने के बजाय लड़की का इंतखाब करके अक्लमंदी का काम लिया था, पर नहीं जानती थी कि वैसा करके मजीद अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। मारवा ने इसे जानबूझकर गलत सिमत भेजा था, जहाँ पर स्टूडेंट्स इक्का दुक्का ही होते थे। इस लड़की के वहाँ जाते ही मावरा ने शाहान को मैसेज करके अगले शिकार के बारे में बताया था और वो अपनी गैंग को लेकर यूनिवर्सिटी के पिछले ग्राउंड में पहुंच गया था, जहां वो इस प्रेशर को हरासा किए खड़े थे। शाहान के बाएं और दाएं जानिब आहत और जैद खड़े थे। इस लड़की का चेहरा हर पल खौफ से जर्द पड़ता जा रहा था। मजीद शाहान और इसके दोस्तों का मुतालबा खौफ से इसके जिस्म पर लर्जा तारी हो गया था। उसकी इस कदर गैर होती हालत से वो तीनों बहुत मुश्किल से अपने कहकों का गला घोटने हुए थे। अरे क्या हुआ बुलबुल, तुम तो कांपने लगी। शाह ने इसकी गैर होती हालत से खत उठाते हुए मुस्कुराकर उसकी गाल को छुआ तो वो लड़की यूं उछलकर पीछे हटी जैसे बिजली की किसी नंगी तार ने इसे छू लिया हो। इसे ऐसे बतक कर पीछे हटते देखकर इन तीनों का कब से रोका हुआ कहका फिजा में बुलंद हुआ। इस लड़की के आंसू बेख्तियार बहने लगे थे। मुझे जाना है प्लीज़। हाँ हाँ, तो हमने कब रोका है जाने से यार। शाहान ने फिर से कहका लगाकर 2 कदम इस लड़की की तरफ बढ़ा। इस लड़की का रंग खतरनाक हद तक सफ़ेद पड़ चुका था, करीब था कि वो खुश खाकर गिर जाती। जब रकम से आती आवाज़ पर इसने कुछ हौसला पकड़ा। क्या हो रहा है यहाँ? खतरनाक नस्वानी आवाज़ पर सभी ने आवाज़ की सिम देखा। या अल्लाह, यूनिवर्सिटी का पहला दिन और पहले दिन में लेट हो गई। अम्मी को भी ना आज का ही दिन मिला था सब करवाने के लिए। मेरा ही ये हाल है तो फिर स्टूडेंट्स क्या करेंगे? वो खुद से बड़बड़ाती हुई तेज तेज चलती यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई। आज इसकी पहली क्लास 9:30 बजे थी और ठीक 9:30 हो चुके थे जब वो यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई। बाकी सभी कार्रवाई वो कल ही मुकम्मल कर चुकी थी। अपनी क्लासेस भी वो कल ही देख चुकी थी। इसकी क्लास यूनिवर्सिटी के आखिर में थी। वो तेज तेज कदम उठाती क्लास की जानिब बढ़ रही थी जब इसे पिछले ग्राउंड से किसी कह की आवाज़ सुनाई दी। वो नज़रअंदाज करती आगे बढ़ रही थी जब इसे किसी लड़की की बेबसी भरी आवाज़ सुनाई दी। मुझे जाना है प्लीज़। और साथ ही से किसी कोई मर्दाना कहका सुनाई दिया। वो खुद को रोक न सकी और आवाज़ों के ताक़ुब में जाने लगी। सामने का मंजर देखकर इसका खून खौलने लगा। वो 3 लड़के एक मासूम सी लड़की को तंग कर रहे थे, जो कि बेबसी की इंतहा को छूते किसी भी पल बस होशो हवास से बेगाने होने की थी। क्या हो रहा है यहाँ? खज़ो खज़ब से उसके पास फट पड़ी थी। सभी ने हैरत से आवाज़ के ताक़ुब में देखा था। वो कदम कदम चलते इस लड़की के करीब पहुंची, उसे कंधों से थाम लिया। तुम ठीक हो? उसने अपनाया से इस लड़की से पूछा, जो कि ममनूनियत से उसे देख रही थी। हरासमेंट एक जुर्म है और इस जुर्म की पादाश में तुम लोगों का पर केस बनता है। इस लड़की से मुतमईन होकर अब इन तीनों की जानिब की तरफ मुतवज्जो हुई। शाहान नाक से मक्खी उड़ाते हुए तन से मुस्कुराकर रुख मोड़ गया। हम इसे हरास नहीं कर रहे थे, बल्कि हम तो प्रेशर से रैकिंग। आहत इन तीनों में से आज नहीं अक्लमंदी से लेते सफाई देनी चाहिए। जब शायान इसे बीच में टोकते मजीद बोलने से रोका। चिल जार, चलो यहाँ से। वो वापस रुख मोड़कर लापरवाह अंदाज में बोला। लाइबा ने गुस्से और हैरत से ही शख्स की तरफ देखा, जैसे यहाँ पर कुछ देर पहले होने वाले वाक़े से कोई फर्क ही न पड़ता था। उसे गौर से देखने पर लाइबा कई पलों तक अपनी निगाहें इससे हटा ही न पाई। इतनी ममासलत भी भला किसी के चेहरे में पाई जा सकती है? हूबहू वही नैन नक्शा। उसे यकदम क्या कुछ याद न आया था। दिल करला उठा था। मोहतरमा, मेरे एक्सरे कर लिया तो क्या मैं जाऊँ? वो काफ़ी देर से बेखुदी की कैफियत में से देखी जा रही थी, जब वो तमस्खनाना मुस्कुराकर बदतमीजी से गोया हुआ। लाइबा ने चौंक कर इधर उधर देखा। वो लड़की इसका सहारा पाकर कब की जा चुकी थी। शाहान तनक्कुर से सर झटकता आगे बढ़ गया। लाइबा को अपनी बेखुदी पर जी पर खताव आया। वो अंदर ही अंदर बेचताब खाकर रह गई। दरवाज़ा एक धाड़ से खुला था। वो जो थकन से चूर पतन लिए अभी बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठी ही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर बिजली किसी तेज़ी से सीधी होकर बैठ गई। नवारा तीर की सी तेज़ी से इसकी तरफ लपका था और इसके दुल्हन बने चांदनी बिखेरते सरापे को नज़रअंदाज करते इसे बेदर्दी से इसकी बाजू से दबोच कर खींचते हुए बेड से नीचे उतारा था। वो जो पहले थकन से चूर पतन थी, वो मुश्किल हवास सलामत लिए बैठी थी। इस अचानक अवतार पर बौखला गई और लड़खड़ाते हुए अपना तवाज़ुन बरकरार न रखने की सूरत मुस्तफ़ा के कंधे से जा लगी। तुम घटिया औरत! मुस्तफ़ा ने एक झटके से इसके चेहरे पर लड़क आने वाले घूंघट को बेदर्दी से नोचकर इतनी जोर से खींचा था कि दुपट्टे पर लगी पिनें टूटकर इसके चेहरे और गर्दन पर कई खराशें पैदा करती दूर जाकर गिरी थी। वो कराह कर रह गई थी। तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त थी। नन्ही नन्ही खून की बूंदें
चेहरे और गर्दन पर चमकने लगी थी, इससे पहले कि वो लड़खड़ा कर दूर जा गिरती। मुस्तफ़ा ने इसे बालों से जकड़ कर अपने मुकाबले खड़ा किया था। बुरी कांची आंखों में मोटे मोटे आंसू तैरने लगे थे। कोई बेहोश इंसान होता तो इस वक्त इसके होशियार पर सैलाब के आगे अपने होश खो बैठता, लेकिन यही तो बात थी कि वो इस वक्त होश में नहीं था, बल्कि इस पर एक जुनून सवार था। कहा था मैंने कि शादी से इनकार कर दो वरना पूरी जिंदगी पछताओगी। कहा था ना मैंने। मुस्तफ़ा ने इसका मुंह अपने सख्त हाथ की गिरफ्त में जकड़ कर कई झटके दिए, पर मुकाबले तो बस हैरत और खौफ से पूरी आंखें खोले झकटक से देखी जा रही थी। बड़ा शौक है ना तुम्हें मदर टेरेसा बनने का? सारी जिंदगी तुम्हें सिसक सिसक कर एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर जीने पर मजबूर न किया तो मेरा नाम भी मुस्तफ़ा नहीं। अपने ऊपर होने वाले हर जुल्म की वजह तुम खुद होगी, क्योंकि मैं तुम्हें हर चीज़ के लिए वार्न कर चुका था। बहरहाल इस ज़िंदगी का इंतखाब तुम्हारा अपना है और मैं पूरी कोशिश करूँगा इसे बद से बदतरीन बनाने में। मुस्तफ़ा ने इसे एक झटके से दूर फेंका था और वो ऊँधे मुँह नीचे जा गिरी थी। साइड टेबल का कोना लगने से इसके माथे से खून की एक पतली लकीर बह निकली थी, जिसे इसने कराहते हुए अपने हाथ से रोकने की कोशिश की थी। मुस्तफ़ा नफरत से ये मंजर देखता हुआ सर झटक कर जिस तरह आया था वैसे ही बाहर चला गया। मुस्तफ़ा का खून खौला था, सर दर्द से फटा जा रहा था। इसकी इस लड़के से कोई अदावत नहीं थी, इसकी दुश्मनी इसके भाई से थी, जो इसके जान से प्यारे भाई का कातिल था। मुस्तफ़ा इस सरफिरे शख्स को भी इतनी ही दर्दनाक मौत देना चाहता था, जितनी दर्दनाक मौत इसने मुस्तफ़ा के अजीज जान भाई को पहुंचाई थी। पंचायत के फैसला के मुताबिक खून बहा के बदले में दिलहाफिज खान अपनी बेटी की जान बख्शी के लिए अपनी लाडली बेटी को वनी की रस्म के मुताबिक मकतूल के भाई मुस्तफ़ा के निकाह में देता। लेकिन मुस्तफ़ा को यह फैसला कबूल न था। वो शुरू से ही वनी की रस्म के सख्त खिलाफ था, जिसमें कातिल खुलेआम बेधड़क और घूमता और एक मासूम और मसलूम जान बेकसूर होते हुए भी अपने भाई के गुनाहों का बोझ अपने कंधों पर उठाते उठाते जिंदगी की जंग हार जाए। इसीलिए इसने पंचायत में बड़े मजमे में खड़े होकर पंचायत के फैसले पर एतराज़ किया था। पहली बार किसी ने पंचायत के फैसले से नाराज़ किया था, कोई पंचायत के फैसले के खिलाफ किया था, लेकिन मुंह में उंगलियां दाबे वहाँ पंचायत में लगने वाले तमाशे को देख रहे थे। मुस्तफ़ा ये बात जानता था कि कोई भी लड़की अपनी मर्जी से या खुशी से अपनी खुद को वनी की रस्म के लिए पेश नहीं करते, बल्कि इसे ज़बरदस्ती इस काम के लिए मजबूर किया जाता है। और वह ये भी जानता था कि दिलाफिज की बेटी शहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, मतलब एक पढ़ी लिखी लड़की होकर वो। लेकिन इसका गुस्सा सवाने से तब पहुंचा जब इस लड़की ने पंचायत में अपना बयान कुछ इन अल्फाज में बयान किया। मुझे पंचायत का हर फैसला मंजूर है। मेरे लिए इस पूरी दुनिया में मेरे भाई से बढ़कर कोई नहीं। ये ज़िंदगी तो क्या, अगर खुदा मुझे ऐसी 10 ज़िंदगियाँ भी अता करे तो मैं खुशी खुशी अपने भाई पर से वार दूँ। बस मेरी एक ही इल्तिजा है कि मेरी रुखसती मेरे शहर वाले घर से हो। आमतौर पर वनी होने वाली लड़कियों को यूँ ख्वाहिश जाहिर करना तो दूर बल्कि बोलने तक की इजाज़त नहीं होती, लेकिन यहाँ पर साफ उलट था, क्योंकि मुस्तफ़ा खुद कह चुका था कि इस लड़की का फैसला ही हतमी माना जाएगा, इसलिए पंचायत इसका फैसला मानने पर मजबूर थी। बहन के बयान पर निसार अली की चमकती आंखें और तनी गर्दन मुस्तफ़ा का खून खौला कर रही थी। वह बेबसी की तस्वीर बना जब्त के आखिरी हदूद को छू रहा था। उसका बस न चल रहा था कि इस लड़की को तहस नहस कर डाले, जिसके बाद इसके भाई का कातिल सरेआम सर उठाकर खड़ा उसे तंज़ी निगाहों से देख रहा था। और तो और सभी लोग मुस्तफ़ा पर हंस रहे थे, जो इनकी बरसों से चली आ रही रीत के खिलाफ आवाज़ उठाने आया था। वो खुद से वादा कर चुका था कि इस लड़की की ज़िंदगी इस कदर बद से बदतर बना देगा कि वो अपनी हर सांस के बदले पछताएगी कि इसने ऐसा फैसला क्यों किया। और वो दाद देता था इस लड़की की जुर्रत को, जितने सब कुछ होने जाने के बाद भी इसकी सही सजा इसके इंतज़ार में बैठी थी। कैसे इतना इल्ज़ाम था अपने हुस्न पर कि इसे लगा मुस्तफ़ा इसके हुस्न के आगे बेबस हो जाएगा, पर वो गलत थी। मुस्तफ़ा को नफरत थी उसके हुस्न से। उसका बस चलता तो वो इसके चेहरे को तेज़ाब से जला देता, पर उस लड़की के लिए इतनी आसान मौत तजवीज़ नहीं करना चाहता था, बल्कि उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था, ताकि इसकी रूह तक बिलबिला उठती। शहान चल जा, क्लास का टाइम हो रहा है। आहद ने शहान को मावरा के कंधे पर हाथ रख के इसके कान में सरगोशी करते देख कर कहा। शहान के सरगोशी से मावरा के चेहरे पर कौसे कज़ा के रंग खुलने लगे थे। मावरा इसकी नई गर्लफ्रेंड थी। शहान की कोई भी गर्लफ्रेंड 1 महीने से ज़्यादा इसके साथ न टिकती थी। वो बहुत जल्द एक चेहरे से उकता जाता था, और हर महीने इसके साथ इसकी एक नई गर्लफ्रेंड होती थी। पर मावरा वो वाहिद लड़की थी जो जैसे पिछले 6 महीनों से उसके गर्लफ्रेंड होने का एहसास था। तो शायद पूरा आहत कि मैं साल में 90% क्लासेस अटेंड नहीं करता, शहान मुंह बनाकर कहा, और दोबारा से अपने मशगले में मशगूल हो गया। यार मैं तो इसलिए कह रहा था कि आज फाइनेंस की नई लेक्चरर आने वाली है, तो फिर मिलने में क्या आपको बात है? आहत जानता था कि शहान को क्लास अटेंड करवाने के लिए कैसे लेकर जाना है,
اسی لیے اس نے چہرے پر ایک پوری سرار سے مسکراہٹ سجا کر کہا، وہ شان کا بچپن کا دوست اور ان کی دوستی اگر ابھی تک برقرار تھی تو اس میں 100% ہاتھ کا ہی تھا۔ شاہان جتنا غصے کا تیز تھا، اتنا ہی تحمل مزاج تھا۔ وہ ہر دفعہ معاملہ بگڑنے پر سیز فائر کرتا، اپنی متحمل مزاجی سے معاملہ رفع دفع کر دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی دوستی ابھی تک قائم تھی۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، شاہان نے خوش ہوتے چٹکی بجا کر کہا۔ احد نے اس کے اتنی جلدی مان جانے پر دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کیا۔ کلاس میں پہنچ کر واسفہ معمول سب سے چھیڑ چھاڑ میں مصروف تھا۔ جب نئی لیکچرار نے کلاس میں قدم رکھا، نئی لیکچرار کو دیکھ کر شاہان اور احد نے بے ساختگی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ شاہان کے شیطانی دماغ نے 1 منٹ میں کام کیا اور ایک پوری سرار سے چمک اس کی آنکھوں میں لہرائی۔ دیکھ تو وہ نئی لیکچرار بھی نہیں چکی تھی پر کمال مہارت سے ان کو نظر انداز کرتی کلاس کی طرف متوجہ ہوئی۔ دراصل یہ لیکچرار وہی لڑکی تھی جس نے صبح ریکنگ کرتے ہوئے شاہان کی خوبصورت لڑکی کو بچایا تھا۔ السلام علیکم کلاس، میں ہادیہ غضنفر، آپ کی نیو فائنانس لیکچرار ہوں۔ وہ شائستہ انگریزی میں بولتے اپنا تعارف کروا رہی تھی۔ ابتدائی تعارف کے مراحل طے کر کے وہ اپنے آج کے لیکچر کی طرف آئی۔ وہ بڑی تندہی سے اپنا لیکچر دے رہی تھی جب یکدم ہی کلاس سے شور اٹھا۔ ہادیہ نے حیرت سے پیچھے مڑ کر کلاس کو دیکھا۔ شاہان پین کا مائک بنائے اپنی سیٹ پر اسٹائل سے کھڑا لہک کر گانا گا رہا تھا، جبکہ اس کا باقی گروپ ڈیسک بجا بجا کر اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ ان کی دیکھا دیکھی پوری کلاس ووٹنگ کرتی اور تالیاں بجاتی ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ ہادیہ کے لیے یہ ساری صورتحال عجیب تھی۔ یونیورسٹی میں پڑھانے کا یہ اس کا پہلا تجربہ تھا۔ اس سے پہلے وہ گرلز کالج میں پڑھاتی تھی اور اب کانٹریکٹ بیس پر یونیورسٹی پڑھانے آئی تھی، لیکن پہلے ہی دن ایسی صورتحال، وہ کچھ پل خاموش سے انہیں یہ سب کرتا دیکھتی رہی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ ایلیٹ کلاس کا بگڑا ثبوت ہے۔ وہ تعصب سے شاہان کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کلاس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی 2-3 بار کوشش کی لیکن بے سود۔ یہ لڑکا اسے کافی ٹف ٹائم دینے والا تھا۔ وہ کچھ دیر تک کھڑی کچھ سوچتی رہی، پھر اپنا ہینڈ بیگ اٹھاتی کلاس سے باہر نکل گئی۔ شاہان کے جاندار قہقہے نے اس کا پیچھے تعاقب کیا۔ وہ ساری رات سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا اپنی اندر کی کھولن کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، پر اس طرح تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کسی طور دل کو سکون میسر نہیں آ رہا تھا۔ اس قدر با اختیار ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے عزیز اجزا بھائی کی موت کا بدلہ نہیں لے پایا تھا، اور یہ سب اس چٹاک پری لڑکی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اور جتنا اس کی زندگی عذاب بنا تھا کم تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہو گیا تھا، پر اس کی زندگی میں تو ہر طرف تاریکی ہی تاریکی تھی۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا، اپنے اندر اڑتے اشتعال کے لہروں کو ضبط کرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ فی الحال اس لڑکی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، اور شومی قسمت اسے کمرے میں کہیں دکھائی بھی نہیں تھی۔ اس نے الماری سے اپنا لباس نکالا اور فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ فریش ہو کر وہ آرام کے بعد سے بیڈ پر آیا اور ساری رات کی بے سکونی کے بعد لمحوں میں غافل ہو گیا۔ دوبارہ اس کی آنکھ 2 گھنٹوں بعد تقریباً 9 بجے کھلی۔ وہ وال کلاک کو دیکھتا اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر بھی معمول کی زندگی اپنی ڈگر پر چل رہی تھی۔ سبھی ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کے لیے اسی کے منتظر تھے۔ وہ چپ چاپ جا کر سربراہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے اب تک کہیں پر بھی وہ نظر نہیں آئی تھی جس سے اس قدر قریبی رشتہ جڑ چکا تھا۔ ایک طرح سے وہ مطمئن تھا کہ وہ کسی صورت اس گھر سے بھاگ نہیں سکتی تھی۔ اس کی دائیں جانب شاہدہ بیگم اس کی ماں، جبکہ بائیں جانب شازیہ اس کی بھابھی بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی 6 سالہ بھتیجی فاطمہ اور 10 سالہ بھتیجا علی اکبر بیٹھا تھا، اور تبھی سے وہ نظر آئی تھی لان کے پرانے سے لباس میں ملبوس، کچن سے لا کر ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کے لوازمات چنتی، ستا ہوا چہرہ نیچے کو جھکائے کسی اور طرف دھیان کیے بغیر اپنے کام میں مشغول، سوجی آنکھیں رت چکے اور اشک باری کی غمازیں۔ رونے کے باعث ناک اور گال کے کنارے سرخ ہونے لگے تھے، جو کہ اس کے حسن میں اضافے کا باعث بن رہے تھے۔ مصطفیٰ نے اس کا مکمل جائزہ لیا اور اس بات کا اعتراف کیا کہ اس کا حسن اچھے اچھوں کے ایمان ڈگمگا سکتا ہے۔ مصطفیٰ بھی اپنی منزل سے راستہ بھٹک جاتا اگر وہ مضبوط اعصاب کا مالک نہ ہوتا۔ اسے دل سے اس لڑکی کی حالت پر افسوس ہوا، پر یہ جذبہ محض ایک پل کا تھا۔ اگلے ہی پل اس لڑکی سے اس کی نفرت عود کر آئی کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کی ذمہ دار وہ خود ہے۔ اپنے لیے زندگی اس نے خود ایسی خوشی قبول کی ہے اور وہ یہ سب ڈیزرو کرتی ہے۔ وہ کچن سے چائے کا فلاسک لے کر آ رہی تھی جب راستے میں ہی علی اکبر نے اس کے پاؤں کے آگے اپنا پاؤں کیا۔ وہ جب اپنے دھیان میں آگے بڑھ رہی تھی، راستے میں آنے والی اس رکاوٹ کو دیکھ نہ سکی اور اٹک کر لڑکھڑا کر گرتے گرتے بچی۔ لڑکھڑانے سے اس کے ہاتھ میں موجود چائے کا فلاسک سے چائے کے کچھ چھینٹے پاس بیٹھی شازیہ کے لباس کو داغدار کر گئے۔ گھٹیا عورت! اس نے آؤ دیکھا نہ تھا اور چیختی ہوئی کھڑی ہوئی، اگلے ہی پل اس پر جھپٹ پڑی اور یکے بعد دیگر اس کے چہرے پر کئی تھپڑ رسید کرنے لگی۔ مصطفیٰ نے لب پیچھے یہ منظر دیکھا اور بنا ناشتے کیے ہی کرسی دھکیل کر منظر سے ہٹتا چلا گیا۔ گرمیوں کی خاموش اور طویل دوپہر میں سورج تو مانو جیسے ساون نیزے پر پہنچ چکا تھا۔
ऐसे में इस रिक्शे वाले ने इसे मेन सड़क पर उतारा और फर्राटे बरता धूल उड़ाता आगे बढ़ गया। आगे 2 अंदरूनी लंबी गलियों की मुसाफत इसे पैदल तय करनी थी। इन 2 गलियों की पैदल मुसाफत ने गर्मी से इसका बुरा हाल कर दिया था। माथे से पसीने की बूंदें यूं जमीन पर हो रही थीं जैसे आसमान से बारिश के कतरे। वो बार बार माथे से पसीना साफ करती, तेज तेज कदम उठाती, अपनी मंजिल की तरफ गामजन थी। प्यास से सूखकर हलक में जैसे कांटे उगाए थे। अपनी गली में दाखिल होते ही सामने से घर का दरवाजा दिखाई देने लगा। वो तेज तेज कदम उठाती घर का दरवाजा धकेलती अंदर दाखिल हुई। सामने ही अम्मी विरामदे में बिछी चारपाई पर खाला सुगरा के साथ बैठी बातों में मशगूल थी। खाला सुगरा को देखकर इसका मुंह बन गया। वो जब भी आती थी 2-4 दिल चलाते जुमले बोल ही जाती थी और सर झटकती दोनों को सलाम करती अंदर कमरे में चली गई। खाला सुगरा की अक्सर करती नजरों ने पीछे तक हादिया का पीछा किया था। अरे कुछ बना हादिया के रिश्ते का? कहीं कोई बात चली कि नहीं? खाला सुगरा ने थोड़ी के नीचे हाथ जमाकर पूछा। खोजती नजरें अभी भी इसी कमरे की तरफ, दरवाजे की तरफ थी जहाँ से हादिया अंदर गई थी। अरे कहाँ अब्बा, जो भी आता है रमा को पसंद कर जाता है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। रोज़िया बी ने अपनी उंगलियों की पोरों से अपने दुखते सर को दबाया। रिश्ता करवाने वाली तो तुम हो अब्बा, इसके लिए भी कोई रिश्ता ढूंढो। देखो रस्सी बुरा ना मनाना तुम। मेरा नहीं ख्याल कभी से कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा। एक उम्र इतनी बढ़ चुकी है, 32-33 साल तो होगी हुई। सुगरा खाला दाएं गाल गाल तले उंगली टिकाई सोच सोच कर बोल रही थी। ऊपर से न शक्ल न सूरत, ना ही कोई ज्यादा जेस मिलने की आस। खाली खोली तालीम का कोई अचार डालेगा क्या? तुम्हें नहीं पता आजकल के लड़कों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, फिर कम उम्र हो वगैरह वगैरह। हाँ, अगर अरमा के लिए कहो तो एक से बढ़कर एक रिश्ता है मेरे पास। वो है भी तो पूरी की पूरी चांद का टोटा, जो एक बार देख ले लाल टपक पड़ती है इसकी। खाला बात करती खबासा से मुस्कुराई, अंदर अपनी चादर तय करती हादिया के हाथ खाला की बातों पर अटके थे। बेख्तियारी इसने आईने में अपना अक्स देखा। दराज कद पर बड़ी बड़ी जहानत से भरपूर चमकदार आंखें, सामने रंगत जो कि धूप से आने के बाद मजीद सांवला हो चुकी थी। ये बातें तो अब रोज़ की थीं और आने वाले रिश्ते का इसे पसंद करने की बजाय अरमा को पसंद करके जाने के बाद इसके और अरमा के यूं ही मवाज़ने होते थे। वो कोई टीनेजर नहीं थी जो इन सब बातों को दिल पर लेती, एक बाशऊर और मैच्योर लड़की थी। लेकिन क्या करती, एक हॉक सी थी जो कि इन बातों से दिल से उड़ती थी। वैसे एक रिश्ता है मेरी नज़र में। आदमी की बीवी का पिछले साल इंतकाल हो गया है। 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 मरले का पक्का मकान है और बाजार में अपने कपड़े की दुकान है। अगर तुम कहो तो बात चलाऊँ वहाँ। बारिश से अभी तक खाला की बातों की आवाज़ आ रही थी। अम्मी ने जवाब में इन्हें पता नहीं क्या कहा। वो सर झटकती, 1000 कोशिश के बावजूद भी आंखों में उमड़ आने वाली नमी को वे धरती से साफ करती अपने बाप का परहेजी खाना बनाने किचन की तरफ बढ़ गई। इसने घर में दाखिल होते ही अपनी बुक सैन में बिछी चारपाई पर फेंकी और खुद भी वहीं ढेर होकर लंबे लंबे सांस भरने लगी। सुबह यूनिवर्सिटी जाती हुई जितनी पुरजोश थी, वापसी पर इतनी दिल गिरफ्तार थी। सारा दिन इसने यूनिवर्सिटी के एक पुरसकून गोशे में बैठकर अपने हवास बहाल करने की कोशिश की थी। हर बार इसकी सोच इसी जगह पर जाकर मंजमंद हो जाती कि अगर आज इन वक्त पर वो लड़की मसीहा बनकर ना आती तो इसका क्या बनता। बहुत सोचने के बाद भी इस फैसले पर पहुंचकर यूनिवर्सिटी से निकली थी कि वो कल से यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी। अरे आ गई जा बेटा, कैसा रहा तुम्हारा यूनिवर्सिटी का पहला दिन? दादी माँ आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए इसके लिए पानी का गिलास लाई थी। इसे गिलास थमा कर वो खुद भी इसके पास ही बैठ गई। दादी की इस तस्वीर पर जहान और उसके ग्रुप वाला मामला एक बार फिर पूरी जैसी याद के साथ आंखों के सामने से गुजरा था। वह चरचरी लेकर रह गई। जी अच्छा गुजरा, वो महजिद नहीं बोल पाई। अच्छा बेटा, तुम्हारे बाप की दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं और घर का राशन भी, बस एक आध दिन का है। दादी अब इसकी तरफ से मुतमईन होकर इसे अगले हालात से आगाह कर रही थी। जी दादी, मैंने 1-2 अकेडमीज में रब्ता किया, उम्मीद है 1-2 दिन तक बात बन जाएगी। वो कसलमंदी से वहीं लेटते हुए बोली। अच्छा बेटा ठीक है, तुम यहाँ मत लेटो, बहुत गर्मी है यहाँ। अंदर कमरे में चलो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। वैसे कहती हुई वापस किचन की तरफ चली गई। हिजाब में पलकों के बार फैलाकर बैठे आंसू को आहिस्ते से साफ किया। पता नहीं कब यह आजमाइशें ख़त्म होनी थी। कितनी मेहनत की थी इसने आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन के असूल के लिए, और जिस रोज़ वो स्कॉलरशिप बेस पर वहाँ सेलेक्ट हुई तो इस रोज़ इसकी खुशी दे देनी थी। वो खुद को वहाँ भी उड़ता महसूस कर रही थी कि अब इसकी ज़िंदगी में मौजूद परेशानी में कुछ कमी हो जाएगी। मगर आज के वाक़ये के बाद वह बहुत डर गई थी। लेकिन वो इतनी आसानी से इतनी मेहनत के बाद हासिल किए गए यूनिवर्सिटी जाने के मौके को गंवा नहीं सकती थी। फैसला मुश्किल था मगर वो कर चुकी थी। रात वो देर से कमरे में आया था और कमरे की हालत देखते ही इसका दिमाग उलट पड़ा था। इसका दिल चाहा वो इस लड़की को तहस नहस करके रख दे,
मुस्तफ़ा ने कमरे में इधर उधर देखकर इसे ढूंढना चाहा, लेकिन वो शायद कमरे में मौजूद ना थी। वो वहीं खोलते दिमाग के साथ सोफे पर बैठकर सिगरेट की कश लेता इसका इंतजार करने लगा, जिसे आज इसके कहे से शायद ही कोई बचा पाता। वो बैठा एक के बाद एक सिगरेट फूंकता जा रहा था, लेकिन नीता का कहीं कोई नामो निशान न था। घड़ी की सुइयां रात के 10 का हिसाब घूर कर रही थी, लेकिन वो अभी तक कमरे में नहीं आई थी। ओह, तो नीरा डेयर, मुझसे फरार हासिल करने का ये तरीका ढूंढा है तुमने। वो इस्तज़ाइया हंसा, पर अब ऐसा मुमकिन कहाँ है। अब तो तुम्हें यहीं सिसक का दम तोड़ना है डियर। वो खुद से हम कलाम होता उठकर कमरे का दरवाज़ा खोल कर बाहर निकलने वाला था, पर इससे पहले कि वो दरवाज़ा खोलता दरवाज़ा खोलते हुए अंदर दाखिल हुई, उसने एक पल के लिए मुस्तफ़ा की तरफ देखा, जो कि सीने पर बाजू बांधे पूरी तवज्जो से उसे ही देख रहा था, और फिर से नज़र झुकाकर उंगलियां चटकाने लगी। मुस्तफ़ा ने जारियाना अंदाज में उसका बाजू खींचकर अपने करीब किया। नींदा ने हैरत से झुका सर उठाकर उसे देखा। तुम जानती हो ना कि किस वजह से यहाँ मौजूद हो तुम? इसका जबड़ा सख्त फौलादी हाथों की गिरफ्त में पकड़े वो डरा था। यूं इसका चेहरा पकड़ने से इसके होठों की चोंच से बन आई थी। मोटी मोटी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। वो मेरे भाई ने कुछ नहीं किया मेरा तो। वो मुस्तफ़ा के मजबूत शिकंजे में फड़फड़ाती अटक अटक कर अभी महज इतना ही बोल रही थी कि मुस्तफ़ा के उल्टे हाथ के थप्पड़ ने इसके अल्फाज का गला घोंट कर इसे ज़मीन बोस होने पर मजबूर कर दिया। होंदे मुँह मार्बल के चिकने फर्श पर गिरी थी। दोबारा अगर तुम्हारे मुंह पर इस गाली का नाम आया तो कसम खुदा की तुम्हारी ज़बान के छोटे छोटे टुकड़े करके चील कौवों को खिलाने में मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा। मुस्तफ़ा इसके करीब घुटनों के बल बैठकर इसके बालों से खींचकर इसका चेहरा ऊपर कर उठाए हुए था। वो इसे महज धमकी मत समझना, मैं इससे भी बुरा कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। लाल अंगारा आंखें लिए वो बोल नहीं पुकार रहा था। आखिर में उसने हकारा से उसका चेहरा झटके से छोड़ा, जिसके बाद उसके चेहरे का दायां हिस्सा बेदर्दी से मार्बल के फर्श से टकराया और एक दिलखराश चीख उसके हलक से बरामद हुई। वो होंठों पर तन से मुस्कुरा सजाए दिलचस्पी से ये मंजर देखता बड़े रिलैक्स अंदाज में जाकर सामने उस बड़े सोफे पर टांग चढ़ाकर बैठ गया। मिस ड्रामा क्वीन, बस करो, अब मैं इस ड्रामे से बोर हो रहा हूँ, इसलिए फटाफट उठो और मुझे पानी पिलाओ। वो उसकी हालत को नज़रअंदाज करता चुटकी में जाकर अगला हुक्म जारी कर रहा था। मोहतरमा, 1 मिनट से ऊपर अगर 1 सेकंड भी होना तो निहायत अफसोस के साथ अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मुस्तफ़ा की वार्निंग पर वो अपनी तकलीफ नज़रअंदाज करती हुई अपनी सिसकियाँ रोकती हुई हथेलियों पर वजन डालकर उठी और कमरे में मौजूद जग से गिलास में पानी डेल तक इसकर लाई। बैठो। निदा से पानी का गिलास लेने के बजाय उसने आंख के इशारे से सामने मौजूद टेबल पर उसे बैठने का हुक्म दिया। निदा ने खौफजदा नज़रों से देखते एक मरतबा फिर से पानी का गिलास इसके सामने पेश किया। निदा की हालत इस वक्त बहुत काबिल रहम थी। दाएं गाल नीचे लगने से सूज चुकी थी, होंठ का किनारा फटकर खून से रसने लगा था। इसका सारा जिस्म खौफ से सूखे पत्ते की मांद लरस रहा था। इस बार मुस्तफ़ा ने इसके हाथ से पानी का गिलास थाम लिया, दोबारा से आंख के इशारे से इसे बैठने को कहा और डरते डरते मैं उसके किनारे पर टिक गई। ओहो, ये तो बहुत ज़्यादा चोट लग गई तुम्हें। मुस्तफ़ा ने आगे होकर इसके होंठ के किनारे को छुआ और इसकी बढ़ती हुई पीछे को हुई आंसू एक बार फिर से पलकों की बार फैलाकर बह निकले। मुस्तफ़ा लब पीछे उसे देखते गया। तुमने अपने लिए ये ज़िंदगी खुद मुंतखब की है, मेरे बार बार वार्न करने के बाद भी। अब बोलो, अपने इस बगैरतमंद भाई को आकर बचा लो तुम्हें मेरे अताब से। वो सर सोफे की बैक से टिकाए आंखें मूंदे सबसे बोल रहा था, जिसके लिए अजाब से मुतरातिब जिंदगी को कबूल किया है तुमने। वो कहाँ का गैरतमंद है जो अपनी जान बख्शी के लिए अपनी बहन को सूली चढ़ा रहा है। हमदर्दी है मुझे तुमसे जो इस जैसे कठिन शख्स के लिए तुमने ऐसा फैसला किया। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता बस। मुस्तफ़ा के थोड़े नम्र रवैये पर वो हिम्मत पकड़ती कुछ बोलने वाली थी, जब मुस्तफ़ा ने यकदम सीधे होते एक धार से इसे चुप करने पर मजबूर कर दिया। कोई मसलूमियत या दबाव की दास्तान नहीं। मैंने तुम्हें वाज़ेह अल्फाज में बावर करवाया था कि बगैर किसी दबाव के पंचायत में अपना फैसला सुनाना। बाकी सब मैं खुद संभालूंगा, वरना दूसरी सूरत अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मेरे अंदर आग लगी हुई है। मुस्तफ़ा ने चीखते हुए हाथ में थामा पानी का गिलास जमीन पर फेंका। निदा दोनों हाथ मुंह पर रखे फटी फटी आंख के लिए 2 कदम पीछे को हटी। मेरे भाई का कातिल खुलेआम धरले से सर उठाए जी रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरा दिल चाहता है तुम पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दूं तुम्हें। वो गुस्से से एक बार फिर से निदा की तरफ बढ़ा। वो खौफ से चीखती हुई मजीद पीछे को भागी, यहाँ तक कि पिछली दीवार ने इसकी मजीद फरार के रास्ते बंद कर दिए। वो आंखों में रहम की इल्तिजा लिए उसे देख रही थी।
मुस्तफ़ा ने इसकी ऐसी हालत देखकर अपनी इश्तार पर काबू पाने की सही की। वो सर के बालों पर हाथ चलाता रुख बदल गया। मोहतरमा नीता साहिबा, ये जो आपकी इस वक्त मेरे कमरे की हालत नजर आ रही है ना। कुछ देर तक खुद को कंपोज करने के बाद वो फिर से इसकी तरफ मुड़कर तहम्मुल से बोला, अगर आज के बाद मुझे कमरा ऐसी हालत में मिला तो तुम्हारे ये जो खूबसूरत हाथ है ना, ये दोबारा से काम करने के लायक नहीं रहेंगे। आई बात समझ में? 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास। मुझे कमरा अपनी असली हालत में चाहिए। अब के बाहर इसने हाथों से समझाने की बजाय इसकी हालत के पेशी नज़र जुबान से ही काम चलाया था। उसे हुक्म देकर वो कमरे में खुलने वाली बालकनी में चला गया। और नींदा जानती थी इसके 10 मिनट का मतलब 10 मिनट। ठीक 10 मिनट बाद वो कमरे में दाखिल हुआ तो कमरा नफासत से शहर था। हर चीज़ नफासत से अपनी जगह पर मौजूद थी और वो खुद इस वक्त मार्बल के चमकते फर्श पर पोंछा लगा रही थी। मुस्तफ़ा को अंदर आते देख इसके हाथों की रफ्तार कई गुना बढ़ गई थी। मुस्तफ़ा को दिल से इसके सुखड़ापे का कायल होना पड़ा। वो इसे नज़रअंदाज करता बेड पर बैठकर अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। जब इसे अपने पास इसकी मौजूदगी का एहसास हुआ, वो कुछ देर तक जो ही इसे नज़रअंदाज किए अपना काम करता रहा। लेकिन 10 मिनट गुजरने के बाद भी जब वो कुछ न बोली और न ही अपनी जगह से हिली तो मुस्तफ़ा ने सर उठाकर इसकी तरफ देखा। आज सुबह सुबह ही मौसम काफ़ी खुशगवार था। हल्की हल्की हवा चल रही थी जिसने गर्मी की शिद्दत में काफ़ी कमी कर रखी थी। हर घर से नाश्ते की मखसूस खुशबूदार और पराठों का धुआं उठ रहा था। ऐसे में इस 3 मरले के मकान में भी जिंदगी की मसरूफियात चल रही थी। अरफा नाश्ता किए बगैर कॉलेज मत जाना, बस नाश्ता तैयार है, आ जाओ यहीं। और अहमद को भी बुला लाओ। किचन में मौजूद आदि ने फ्राइंग पैन में अंडे फ्राई करते अरमा को अपने कॉलेज बैग में चीज़ें पूरी करते देख वहीं से हाँक लगाई। आइए आप। कुछ देर बाद अहमद और अरमा आगे पीछे किचन में दाखिल हुए। आपो पहले मुझे नाश्ता दे दें, मैं कॉलेज से लेट हो रही हूँ। आपो पहले किचन में मैं आया हूँ इसलिए नाश्ता पहले मुझे दे, मैं अभी स्कूल से लेट हो रहा हूँ। अरमा के कहने पर अली ने नाक मुँह चढ़ाकर कहा, तुमने बड़ी दूर जाना है ना, ये पास तुम्हारा स्कूल। अच्छा बस बस अब यहीं शुरू ना हो जाना तुम दोनों, नाश्ता बस तैयार है, दोनों को इकट्ठे मिलेगा। इससे पहले कि दोनों की बहस झगड़ा इख्तियार कर दी, हादी ने डिश में दोनों का नाश्ता सेट करते बातें ख़त्म कर दी। आपको देखने से रमा की बच्ची को रमा ने अहमद को ज़ुबान चढ़ाई और अब कर बोला। ज़ुबान चढ़ाते हुए हादी के पीछे जाकर छुप गई, वरना अभी तक इसके रेशम के लच्छों जैसे शहद रंग के बाल अहमद के कब्जे में होते। रमा। हादिया ने चिमटा नीचे रखते मुड़कर अपनी ओट में छुपी अरमा को देखकर अरमा पर जोर देते उसे घूरी से नवाजा। वो मुस्कुराकर कंधे झुकाती और चक्कर हादिया के सामने पड़ी नाश्ते की ट्रे से लच्छेदार पराठे के नवाले तोड़ तोड़ कर खाने लगी। हादिया ने आंख भरकर अपनी इस छोटी बहन को देखा। सुर्खों सफेद चेहरा ऐसा जैसे मलाई से बना हो, मोटी मोटी घिसाली आंखें जैसे मजीद काजल के कोर से नुमाया किया गया था। सुतवा नाक, बारीक गुलाब की पंखुड़ी से गुलाबी होंठ, मुंदरासिब सरापा। अगर हर आने वाला रिश्ता इसके लिए सवार डाल जाता था तो ऐसा बगैर किसी वजह के नहीं करता था। होती ही चाहे जाने के काबिल। आप मुझे भी नाश्ता दे, अहमद के पुरज़ोर इस्तजाज पर हादिया हड़बड़ाकर हाथ में वापस लौटी और दोनों को नाश्ते की ट्रे दबाने लगी। अरमा अम्मी उठ गई। उसने बाल में अप्पा की यखनी डाली और इनके लिए ताज़ा रोटी सेकने लगी। नहीं, आप अभी सो रही हैं? वो वहीं खड़ी बड़े बड़े निवाले लेकर इजलत में नाश्ता कर रही थी। एक बड़ा सा निवाला मुंह में डालते उसने भरे हुए मुंह से जवाब दिया। हादिया इसकी हरकतें देखकर मुस्कुरा दी। वो कहीं से भी 18 साल लड़की नहीं बल्कि 8 साल बच्ची लगती थी। वह सर झटकती अब्बा के नाश्ते की ट्रे सेट करने लगी। अरमा बड़ी चादर लेकर अच्छे से खुद को कवर करके कॉलेज जाओ। ट्रे उठाए अब्बा के कमरे की तरफ जाती उसने अरमा को छोटे से दुपट्टे को ओढ़े देखकर बाहर निकलते देखकर कहा। अरमा ने मुँह बसोरते माथों पर शुकना का एक हाथ जान बिछाए पास पड़ी चादर उठाकर बादल नखास्ता और ली। अब्बा नाश्ता। उसने ट्रे अब्बा की व्हील चेयर के पास पड़ी तपाई पर रखी। इसे देखकर अब्बा सोचा कि पवा से निकले एक भूली बिसरी मुस्कुराहट इनके अब्बा को छू गई। कहती है लाइबा बेटा। इनके लाइबा कहने से हादिया ने बड़े जब्त से अपनी हंसी रोकी। इसकी माँ को इसका नाम लाइबा पसंद था पर अब्बा को यह नाम पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने इसका नाम हादिया रख दिया। अम्मा कई दिनों तक अब्बा से मुंह बनाए रही थी और वो तो इसे बुलाती ही लाइबा थी, पर अब्बा जब कभी कभी इसे लाइबा कहते थे तो इसे बहुत हंसी आती थी। अब्बा नाश्ता कर लें फिर ठंडा हो जाएगा। हादिया ने नाश्ते की तरफ इशारा किया तो इनकी आंखों में नमी चमकने लगी। मुझे माफ़ कर दो बेटा, तुम्हारी तरफ से बहुत बोझ है दिल पर। काश वक्त रहते तुम्हारे पास से सबको दोष हो जाता तो आज तुम भी अपने घर पार वाली होती। उन्होंने अपना नहीं फलरस्ता हाथ हादिया के सर पर रखा। आप ऐसा क्यों सोचते हैं अब्बा? वक्त से पहले और नसीब से बढ़कर आज तक कभी किसी को नहीं मिला
मेरी किस्मत में जब शादी होगी तब हो जाएगी, आप फिक्र मत करें। वो सर झुकाए तपाई के खाली सिरे पर उंगलियां फेरती आहिस्ते से मुखातिब हुई। बेशक बेटा, तकदीर इस रोज़े अव्वल से ही लोहे कलम पर महफूज है, लेकिन हम इसके लिए तदबीर तो कर सकते हैं ना। मेरी तो दिन रात की दुआ का महवर ही तुम हो बेटा। खुदा तुम्हारे नसीब अच्छे करे और तुम्हें नेक पर अता करे। दुआ गो हूँ कि अपने जीते जी ही तुम्हें तुम्हारे घर बार का कर दूँ, वरना मेरे बाद तो ये लोग तुमसे जीने का हक तक छीन लेंगे। सब से बोलते हुए भी दो आंसू इनकी आंखों से टूट गए। सारी उम्र गुजार देने के बाद इन्हें बेटी का एहसास हुआ भी तो कब, जब वो खुद लाचार हो चुके थे। हादिया ने कर्ब से नजर उठाकर इन्हें देखा, जब अपने आंसू पोंछते हुए आहिस्ता आहिस्ता नाश्ता कर रहे थे। धूप ने चार कनाल के महल नुमा कर चारों तरफ से अपने पर फैला रखे थे। दो मुसल्ला गार्ड बड़े से आनी गेट पर खड़े मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। ऐसे में इस महल नुमा घर की दूसरी मंजिल के दाएं जानिब तीसरे कमरे में झांको तो वहाँ दोपहर के वक्त भी तारीकी का राज था। कमरे में जीरो पावर का बल्ब रोशन था। कद आदम खिड़कियों पर दबेस पर्दे पड़े थे, जिसके बाद सूरज की झलझलाती धूप अंदर आने में नाकाम थी। एसी की ठंडक में मौजूद बेड पर ऊंधे मुंह लेटा था। लिहाफ का एक सिरा इसके नीचे था, जबकि बाकी सारा लिहाफ नीचे पीछे मखमली कारपेट की जीनत बना हुआ था। एक हाथ सिराने के नीचे जबकि दूसरे हाथ से कुशन पकड़कर चेहरा ढांप रखा था। मोबाइल की तेज बिप को मुसलसल नजरअंदाज कर रहा था, पर फोन करने वाला भी खासा ठीठ वाक़ हुआ था। मुसलसल बजती रिंग ट्यून से उकता कर उसने चिल्लाते हुए चेहरे पर रखा हुआ कुशन कारपेट पर फेंका और मूंदी हुई आंखों से ही सिरहानों के नीचे से टटोल का मोबाइल ढूंढने लगा, जो कि थोड़ी सी दगदग के बाद इसे मिल गया। कौन मर गया जार? उसकी सोई हुई आवाज़ एयरपीस से गूंजी तो अपनी कार के बोनट से टेक लगाकर खड़े आहत ने मोबाइल को कान से उठाकर घूरा। तो अभी तक सो रहा है शाहान? ऊपर से 12 बज रहे हैं। तूने टाइम बताने के लिए मुझे फ़ोन किया है? वो गनूदगी में था। यार, यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? अब की बार हाथ पिजन चला गया था। हाँ, नहीं जाना। अंदाज हनोज वही था। देख शाहान, तो खुद तो एयर कंडीशन की ठंडी हवा में सो रहा है और मैं पिछले आधे घंटे से तेरे घर के सामने चिलचिलाती हुई धूप में खड़ा हूँ। इतने नखरे तो रांचे ने हीर के ना उठाए होंगे जितने मैं तेरे उठा रहा हूँ। देख मेरे भाई, मुझ पर रहम खाओ, जल्दी से बाहर आ जा, इससे पहले कि मैं धूप से पिघल जाऊं। और तुम? इससे पहले कि हाथ अपनी बात मुकम्मल करता शाहान इसका फोन काट चुका था। आहद ने दांत पीसते पीसते इसका नंबर मिलाया। अब क्या तकलीफ है? बोल तो दिया नहीं जाना जूनी, अब सोने दे। नींद के पास इसकी आवाज़ काफ़ी भारी हो रही थी। तो मैं ये समझू कि तुम इस हादिया से डर गया। अब की बार आहद ने ताक कर वार किया था। हादिया के नाम पर शाहान ने पट से आंखें खोली थी। छम से हादिया का सांवला सुनहरा चेहरा तस्वर के कैनवस पर उभरा था। एक तन से मुस्कुराहट इसके लबों को छू गई। अरे यार, अभी तो इसने इस ब्लैक ब्यूटी की वाट लगानी है मुझे। इसने झटके से उठकर बैठते हुए हाथ पर हाथ मारा। तो 10 मिनट इंतजार कर मेरा, मैं बस शावर लेकर आया। वो एक जस्ट में पैर से नीचे उतरा और झपाक से वॉशरूम में घुस गया। आहद ने इसके मान जाने पर खुदा का शुक्र अदा किया। मुस्तफ़ा लैपटॉप पर मसरूफ़ कुछ देर तक इसके बोलने का मुंतज़र रहा, लेकिन जब वो काफ़ी देर तक कुछ न बोली और ना ही अपनी जगह से हिली तो मुस्तफ़ा ने लैपटॉप से निगाहें उठाकर सवारी नज़रों से इसे देखा। वो सर झुकाए होंठ को चलते हाथ मसलती जैसे ही किसी शेषोपन में मुब्तला थी। और आपके क्या इरादा है क्या? मुस्तफ़ा ने इसकी हालत पर चोट की। वो मुझे अब मुंह से आगे कुछ फोटो की भी कि रात ऐसे ही गुजार दोगी। मुस्तफ़ा इसकी मामा की गर्दन से अच्छा खासा चिढ़ चुका था। मामा, मुझे भूख लगी है, को कुछ खाने को दे दे। अब की बार वो हाथों की उंगलियों को बुरा तरह मसलती अटक अटक कर जल्दी से बोली थी। होंठ आहिस्ता आहिस्ता कँप आ रहे थे, आंखों से आंसू किस भी पल बहने को तैयार थे। मुस्तफ़ा ने एक नजर इसे देखा, फिर कुछ सोच कर मुस्कुराते हुए उठा। तुम 1 मिनट इंतजार करो, मैं अभी कुछ खाने को लाता हूँ। इसके बाद पर निदा के मुरझाए चेहरे पर रौनक लौटने लगी। उसने तशक्कुर से मुस्तफ़ा को देखा। चंद मिनट बाद मुस्तफ़ा कमरे में वापस आया था। इसके हाथ में एक ट्रे पकड़ी थी, जिसमें एक सूखी हुई शायद कल की रोटी थी। साथ में कटोरी में हल्के शोरबे वाली दाल थी। खाना काबिल एतराज़ था, पर निदा की आंखों की चमक इस खाने को देखकर ही कई गुना बढ़ गई थी। वो तीर किसी तेज़ी से खाने की ट्रे की तरफ लपकी थी, लेकिन इससे पहले कि वो मुस्तफ़ा के हाथ से ट्रे पकड़ती, मुस्तफ़ा ने ट्रे में मौजूद सूखी रोटी को फर्श पर फेंक दिया। निदा चौंक कर 2 कदम पीछे हटी और नासमझी से मुस्तफ़ा को देखने लगी। मुस्तफ़ा ने इसकी आंखों में आंखें गाड़े हुए होंठों पर तन से मुस्कुराहट सजाते हुए ट्रे से दाल की कटोरी उठाकर वो भी फर्श पर अंडेल दी, जो कि इस मार्बल के फर्श पर नक्शो निगार बनाते हुए पहल कर बिखर गई।
निदा फटी फटी आंखों से नीचे जमीन पर बिखरे खाने को देखने लगी। आंखों की चमक यकदम बेबसी में बदल गई थी। इसने निगाहें उठाकर पुरशिकवा निगाहों से मुस्तफ़ा को देखा। इसकी नज़रों में क्या कुछ न था, आंखों की नमी फिसल कर गालों पर बहने लगी थी। भूख लगी थी ना तुम्हें, चलो फिर खाओ खाना। मुस्तफ़ा ने इसकी हालत से खत उठाते आंख से इशारा करके इसे खाने की तरफ मुतवज्जह किया। हरी अप मिस निधा, इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए। वो दोनों हाथों से ताली बजाकर इसके करीब आधा ड्रामाई अंदाज में बोला। निधा ने एक पल के लिए इसकी पूंछ की तरफ देखा, फिर हाथ की पूंछ से आंसू साफ करती वहीं बैठकर कपकपाते हाथों से सूखी रोटी के निवाले तोड़कर फर्श पर बिखरी दाल को इकट्ठा करके खाने लगी। इसके खाने की स्पीड बता रही थी कि वह वाकई भूखी है। मुस्तफ़ा को तासुब खेने लगा, क्या था अगर वो यही खाना इस ट्रे में ही दे देता। शर्मिंदगी के बाद उससे ये मंजर मजीद देखा न गया और वह खुद को घसीटता बालकनी में चला गया। कुछ देर बाद जब वो वापस आया तो फर्श बिल्कुल साफ था। गालिबन वो खाना खाने के बाद फर्श साफ कर चुकी थी। वो गुमसुम सा आकर बैठ के किनारे पर लेट गया। तुम वहाँ इस कोने में अपना बिस्तर लगा लो। मुस्तफ़ा ने कोने में दुबकी बैठी इस लड़की को अपने दाएं जानिब फर्श की तरफ इशारा करके गोया इसे आज की ड्यूटी से छुट्टी दी थी। वो खामोशी से उठकर इस कोने में जाकर लेट गई। मुस्तफ़ा ने हाथ बढ़ाकर लैंप बुझा दिया और खुद आंखों पर बाजू रखकर सोने की कोशिश करने लगा। जारी है। तो व्यूअर्स, कैसे लगे आपका एपिसोड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नए आने वाले नॉवेल्स की अपडेट आपको मिलती रहे। और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।